Good evening, ma'am. This is Bhupalini this side. So should we start the session? Hello. Good evening. Am I audible? Yes, ma'am. You're audible. Hello. Hello. Yes, ma'am. You're audible. Hello.
Am I audible? Yes. Market. Is my presentation visible? Yes, ma'am, it's visible. Okay, okay. Can we start now? Because I think it's already 4. Hello. Yes, ma'am. I think we can start. Good evening, everybody. Welcome to our investor education program. Today we have with us Ms. Divya Khurana from SEBI, who is a manager, and she will be taking us through our today's topic, which is Introduction to Commodity Derivatives Market. During the session, if anybody have any doubts, कोई भी अगर किसी को doubt है तो वो chat box में अपना question post कर सकते हैं. Session के बाद we will take up your queries. Thank you so much. Ma'am, you can start the session. Good evening, everyone. So, as ma'am has already introduced me, my name is Divya Khurana. I work as a manager in Securities and Exchange Board of India. So, before I start my presentation, there's a small disclaimer that this presentation is very general in nature and cover only basic aspects of the commodity derivatives market and is for educational purpose. So if you have any queries related to the rules, regulation or circulars of SEBI or anything which I mention here, you may sought professional advice. So through the course of this presentation, I am going to take you through the regulatory framework of the financial markets. Then I'll explain you about the commodity derivative markets in India and what are its benefits, what are the products that are available, what are the initiatives taken by SEBI, and do's and don'ts of safe investing. So as I'll define like what is a financial market. A financial market is a marketplace where the buyers and seller meet together to exchange the financial assets. These financial assets can be in the form of, it can be anything. It can be equity, it can be commodity, it can be an insurance product, it can be foreign exchange. So for different financial products, we have different regulators in India. For equity and commodity derivative market, Securities and Exchange Board of India is the regulator. For banking sector, RBI regulates the entire banking sector. Insurance products are regulated by IRDAI, and pension products are regulated by PFRDA. So for the securities market, in the regulatory framework, the first level regulators are the stock exchanges, and they have their respective clearing corporations which provide the clearing and settlement services. SEBI is considered as the second level regulator who oversee the functioning of the stock exchanges, clearing corporation, and the entire securities market. So SEBI was set up in 1992 as the regulator for securities market, and it has the following 3 major objectives. That is to promote the development of the market, to regulate the securities market, and to protect the interest of investors. So prior Ma'am, one second, ma'am. If I can interrupt you, please. We yeah. have somebody mentioned in the chat to have the session in Hindi. If you can just, continue the session in Hindi for the benefit of the audience. Okay, I'll do that. Thank you. ओके सो 2015 से पहले सेबी जो है वो सिर्फ इक्विटी मार्केट को रेगुलेट करता था और कमोडिटी मार्केट को फॉरवर्ड मार्केट कमीशन रेगुलेट करता था. 2015 में एफएमसी का सेबी के साथ मर्जर हो गया और कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट जो है वो सेबी के अंदर आ गई. तो सेबी अब उसको सेबी रेगुलेट करता है. सो अगर मैं डिफाइन करूं कि डेरिवेटिव क्या होता है, डेरिवेटिव एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसकी वैल्यू उसके अंडरलाइंग एसेट से डिफाइन होती है. सो वो अंडरलाइंग एसेट कुछ भी हो सकता है. इट कैन बी एन इक्विटी, इट कैन बी फॉरेन एक्सचेंज, इट कैन बी एनी प्रोडक्ट. सो जिस डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में अंडरलाइंग जो है वो कमोडिटी होता है, दैट इज कॉल्ड कमोडिटी डेरिवेटिव. सो एससीआरए की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कमोडिटी डेरिवेटिव
means a contract which derives its value from prices or indices of prices of underlying goods as may be notified by the central government. So commodity derivative market and equity derivative market बहुत सारे aspects में similar होते हैं, लेकिन उनके बीच में जो मेजर डिफरेंसेस हैं वो ये है कि कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट में जो अंडरलाइंग मार्केट है, दे आर द फिजिकल गुड जो जो स्टैंडर्डाइज नहीं होते। पूरे इंडिया में जो फिजिकल गुड्स हैं, द मार्केट्स जो हैं वो पूरी फ्रेगमेंटेड हैं। लेकिन इक्विटी डेरिवेटिव में जो अंडरलाइंग गुड होता है वो एक फाइनेंशियल एसेट होता है जिसकी वैलिडिटी परपेचुअल होती है और वो बहुत स्टैंडर्डाइज होता है। कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट में जो कमोडिटी की सप्लाई होती है वो बहुत अनसर्टेन होती है। प्रोडक्शन हर साल वेरी करती है, उसके अकॉर्डिंग सप्लाई भी वेरी करती है। लेकिन इक्विटी डेरिवेटिव मार्केट में जो अंडरलाइंग एसेट है वो बहुत उसकी सप्लाई सर्टेन होती है और वो पब्लिक डोमेन में दिया होता है कि कितनी सप्लाई है। इक्विटी मार्केट में जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो रिटेल और इंस्टीट्यूशनल होते हैं, लेकिन कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट में फार्मर्स भी पार्टिसिपेट करते हैं और ट्रेडर्स आर देयर, इंपोर्टर्स, एक्सपोर्टर्स, एफपीओ, बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स होते हैं। इन कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट सेटलमेंट फिजिकल डिलीवरी के थ्रू होता है, यानी कि गुड्स जो हैं वो बायर को डिलीवर किए जाते हैं। लेकिन इक्विटी डेरिवेटिव मार्केट में सिर्फ डीमैट सेटलमेंट होता है कि इक्विटी शेयर जो हैं वो एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर किए जाते हैं। कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट में प्राइस की जो सेंस द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के थ्रू बहुत सेंसिटिव होता है, लेकिन इक्विटी डेरिवेटिव मार्केट में द सेंसिटिविटी इज वेरी मीडियम। In commodity derivative market, participation level compared to equity market थोड़ा कम है। So commodity derivative market के benefits क्या है? फर्स्ट इज कि कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट जो है वो प्राइस डिस्कवरी में हेल्प करता है। कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट फार्मर्स को, प्रोड्यूसर्स को, ट्रेडर्स को एडवांस सिग्नल प्रोवाइड करता है जिसके अकॉर्डिंग दे कैन डिसाइड कि उनको क्या प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है। एट द सेम टाइम डेरिवेटिव मार्केट रिस्क को हेज करने में भी हेल्प करता है। कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट में क्लियरिंग कॉरपोरेशन जो है वो काउंटर पार्टी की तरह एक्ट करती है और जिसकी वजह से दूसरी पार्टी के डिफॉल्ट करने का रिस्क चला जाता है। डेरिवेटिव मार्केट में सारी इंफॉर्मेशन एक्सचेंजेस की वेबसाइट पे होती है, सो देयर इज तो ट्रांसपेरेंटली ट्रेडिंग होती है, देयर इज अ लॉट ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन द ट्रेडिंग ऑफ द कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट। जो प्रोडक्ट्स ट्रेड किए जाते हैं वो बहुत स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं नेचर में। एक स्नैपशॉट है जिसमें हमें पता चलेगा कि एट प्रेजेंट व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द मार्केट। सो एट प्रेजेंट 5 कमोडिटी डेरिवेटिव एक्सचेंजेस हैं जो कमोडिटी डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग प्रोवाइड करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 91 गुड्स नोटिफाई किए हैं जिन पे कमोडिटी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल हो सकते हैं, लेकिन अभी सिर्फ 43 कमोडिटीज पे कमोडिटी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल हैं। So these are the 5 exchanges which provide commodity derivative services. पहला है NCDX. NCDX majorly agricultural commodities contracts में NCDX majorly agricultural में commodity derivative contracts provide करता है। MCX में majorly non agricultural goods में contracts available हैं। ICX में diamond contract बहुत ज़्यादा vibrant है और कुछ एग्रीकल्चरल कॉन्ट्रैक्ट्स भी अवेलेबल हैं जैसे कि रबर। बीएससी और एनएससी ने अपना कमोडिटी डेरिवेटिव सेगमेंट 2018 में ही ज्वाइन किया है और इधर एग्री एंड नॉन एग्री दोनों अवेलेबल हैं। सो मेजर कमोडिटीज जो जिस पे ट्रेडिंग अवेलेबल है वो है ऑयल एंड ऑयल सीड्स में मस्टर्ड सीड, कॉटन सीड, सोयाबीन ऑयल। फूड ग्रेन्स में यू विल फाइंड चना, वीट, ग्राम, मेज, कॉर्न,
प्रीशियस मेटल्स में गोल्ड, सिल्वर एंड डायमंड, मेटल्स में नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल, एल्यूमिनियम, लीड, जिंक, स्पाइसेस में टर्मरिक, पेपर, चिली, क्यूमिन सीड इज अवेलेबल, फाइबर्स में कॉटन, जूट, एंड अदर्स कैटेगरी में कैस्टर सीड, ग्वार सीड, ग्वारगम। अगर मैं कमोडिटी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट के फीचर्स देखूं तो कमोडिटी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स की एक एक्सपायरी डेट होती है जिसके बाद एक्सपायरी पे डिलीवरी करनी पड़ती है। कमोडिटी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स में स्टॉक एक्सचेंजेस ने सारे क्वालिटी पैरामीटर्स भी प्रिस्क्राइब किए होते हैं। इट ऑल उसमें ट्रेडिंग यूनिट और डिलीवरी यूनिट भी दिया होता है। जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो फिजिकल डिलीवरी के थ्रू सेटल होते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशंस में डिलीवरी सेंटर भी दिया होता है जहाँ पे डिलीवरी हो सकती है। डेली प्राइस लिमिट और पोजीशन लिमिट भी दी होती है। डेली प्राइस लिमिट इसलिए होती है ताकि प्राइस में ज़्यादा वॉलेटिलिटी ना आए, और पोजीशन लिमिट इसलिए है ताकि किसी एक इन्वेस्टर या फिर ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स में कंसंट्रेशन ना हो पाए। Mark to market settlement is also there, and exchanges also, CCs also take margins. Uh, the composition of commodity derivatives ecosystem. Commodity derivative ecosystem में बहुत तरीके के participants होते हैं। फर्स्ट कैटेगरी है hedgers की। ये जो participants है इनका फिजिकल मार्केट में एक्सपोजर होता है, एंड दे कम टू द मार्केट टू रिड्यूस देयर मार्केट रिस्क। इसमें फार्मर्स, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, इंपोर्टर्स, एक्सपोर्टर्स, मैन्युफैक्चरर्स होते हैं। फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स जो होते हैं उनका फिजिकल मार्केट में एक्सपोजर नहीं होता, लेकिन वो रिस्क लेने के लिए तैयार रहते हैं सो दैट उनको प्रॉफिट हो पाए। सो दीज फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स आर डे ट्रेडर्स, पोजीशन ट्रेडर्स, मार्केट मेकर्स। फिर आर्बिट्राजर्स होते हैं जो फिजिकल मार्केट और फ्यूचर्स मार्केट में प्राइस डिफरेंस का फायदा उठाते हैं ताकि वो लोग प्रॉफिट ले पाए। इसकी वजह से दोनों मार्केट्स इक्विलिब्रियम में आ जाती हैं अगर दोनों मार्केट्स में प्राइस डिफरेंसेस हैं। फिर ब्रोकर और ट्रेडिंग मेंबर्स होते हैं। ब्रोकर्स जो हैं वो क्लाइंट्स को ट्रेडिंग के लिए सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो जब भी क्लाइंट को मार्केट में आना है ट्रेड करने के लिए, वो हमेशा ब्रोकर के थ्रू आए, और ब्रोकर अपने अकाउंट पे भी ट्रेड करते हैं एज अ क्लाइंट। देयर आर और भी स्टेक होल्डर्स हैं इस मार्केट में। स्टॉक एक्सचेंजेस हैं जहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हैं। दे प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर ट्रेडिंग। देन दे आर क्लियरिंग कॉरपोरेशन जो क्लियरिंग एंड सेटलमेंट फंक्शंस प्रोवाइड करती हैं। रिपोजिटरीज के पास अकाउंट खुलवाना होता है, क्योंकि जो भी गुड्स ट्रेड होते हैं रिपोजिटरीज उनका रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। वेयरहाउस सर्विस प्रोवाइडर्स आर ऑल्सो वन ऑफ द स्टेक होल्डर्स। सो वेयर हाउसेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्योंकि वो स्टोरेज सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, एंड दे इंश्योर कि क्वालिटी और क्वांटिटी मेंटेन रहे। वेयर हाउस सर्विस प्रोवाइडर्स एम्पैनल किए जाते हैं क्लियरिंग कॉरपोरेशन द्वारा, एंड वेयर हाउस सर्विस प्रोवाइडर्स WDRA रेगुलेट करता है। एसेइंग एजेंसीज भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। दे वो इंश्योर करती हैं कि क्वालिटी जो है वो स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंग हो। तो कोई भी इन्वेस्टर जब भी इन्वेस्ट करने के टाइम पे वेयर हाउसेज में गुड्स रखता है तो वहाँ पे एसे किया जाता है ताकि सारे गुड्स जो हैं वो एक्सचेंज की क्वालिटी स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग हो। दो मेजर तरीके के कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेड किए जाते हैं। पहला है फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा है ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट। फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट एक कॉन्ट्रैक्ट है दो पार्टीज के बीच में, कि दो पार्टीज कुछ कमोडिटीज एक फ्यूचर डेट पे ट्रेड करेंगी जिसका प्राइस वो लोग आज डिसाइड कर रहे हैं। वो एक स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें क्वालिटी स्पेसिफिकेशंस स्टैंडर्डाइज होती हैं, ट्रेडिंग यूनिट और डिलीवरी यूनिट बताया हुआ होता है, पोजीशन लिमिट, मार्जिन्स, सब कुछ दिया होता है। ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट से डिफरेंट है इस तरीके से कि जब आप ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हो तो आपके ऊपर ऑब्लिगेशन नहीं होता कि आपको मार्केट में ही सेल, फ्यूचर्स मार्केट में, ऑप्शंस डेरिवेटिव मार्केट में ही सेल करना है। अगर आपको दिखता है कि
स्पॉट फिजिकल मार्केट में प्राइस इंक्रीज हो गया है तो आप फिजिकल मार्केट में भी सेल कर सकते हो, लेकिन फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में आपको स्क्वायर ऑफ किए बिना आप स्पॉट मार्केट में सेल नहीं कर सकते। अभी तक सेबी ने क्या क्या मेजर इनिशिएटिव्स लिए हैं मार्केट के डेवलपमेंट के लिए? पहला तो है कि कन्वर्जेंस ऑफ कमोडिटी डेरिवेटिव एंड इक्विटी मार्केट्स। पहले कमोडिटी डेरिवेटिव एक्सचेंजेस अलग होते थे और इक्विटी एक्सचेंजेस अलग होते थे। 2018 में यूनिवर्सल एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट आया जिससे हर एक्सचेंज कमोडिटी डेरिवेटिव एंड इक्विटी दोनों लॉन्च कर सकता है। सेबी ने न्यू पार्टिसिपेंट्स भी अलाउ किए हैं, म्यूचुअल फंड्स, पोर्टफोलियो मैनेजर्स, फॉरेन एंटिटीज जिनका फिजिकल मार्केट में एक्सपोजर है, दे कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट। दे हैव लॉन्च्ड न्यू प्रोडक्ट्स, कमोडिटी इंडाइसेस, फ्यूचर्स एंड कमोडिटी इंडाइस लॉन्च किए हैं एमसीएक्स ने एंड एनसीडीएक्स ने। ऑप्शंस पहले सिर्फ ऑप्शंस ऑन फ्यूचर्स अवेलेबल थे, 2019 से ऑप्शंस इन गुड्स भी अवेलेबल हैं और गोल्ड, चना, मेज, सिल्वर, मस्टर्ड सीड, इन सब कमोडिटीज में ऑप्शंस इन गुड्स अवेलेबल है। वेयर हाउसेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी मार्केट में बिकॉज वो हमें स्टोरेज सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्वालिटी और क्वांटिटी को इंश्योर करना। इसलिए सेबी ने बेसिक नॉर्म्स प्रिस्क्राइब किए हैं जो वेयर हाउसेज को फॉलो करने हैं टू इंश्योर द क्वालिटी एंड क्वांटिटी। सेबी दे जो स्टॉक एक्सचेंजेस से रेगुलेटरी फीस चार्ज करता है, सेबी ने वो रिड्यूस की है और जो भी रेगुलेटरी फीस एक्सचेंजेस के साथ बच जाती है वो उस पैसे को यूज करके फार्मर्स को सब्सिडी या रिम्बर्समेंट दे सकते हैं इन सब चीज़ों में, वेयर हाउसिंग एंड एसेइंग चार्जेस में, कॉस्ट ऑफ बैग्स एंड ट्रांसपोर्टेशन, ब्रोकर फी, डिलीवरी फी, रिपोजिटरी फी, मंडी टैक्स एंड ऑप्शंस प्रीमियम। डेली प्राइस लिमिट भी इंक्रीज की है रिसेंटली। इन द बजट ऑफ 2021-22 गोल्ड एक्सचेंज का अनाउंसमेंट हुआ है कि सेबी गोल्ड एक्सचेंज को रेगुलेट करेगा। उसके लिए सेबी ने एक कंसल्टेशन पेपर निकाला है कि गोल्ड एक्सचेंज कैसे रेगुलेट होगा, और गोल्ड एक्सचेंज के 3 ट्रांचेस हैं। पहले ट्रांच में फिजिकल गोल्ड को एक इलेक्ट्रॉनिक रिसीट में, जिसको ईजीआर बोलते हैं, कन्वर्ट किया जाएगा। सेकेंड ट्रांच में ईजीआर को ट्रेड किया जाएगा स्टॉक एक्सचेंजेस में, और थर्ड ट्रांच में ईजीआर को फिजिकल गोल्ड में कन्वर्ट किया जाएगा अगर किसी को फिजिकल डिलीवरी लेनी है। हमारे ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग अगर किसी भी इन्वेस्टर को कोई भी ग्रीवियंस है, वो सबसे पहले स्टॉक एक्सचेंजेस या रिस्पेक्टिव इंटरमीडियरी के पास जाए। अगर दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद द रेजोल्यूशन, वो सेबी के स्कोर्स पोर्टल पे अपनी कंप्लेंट डाल सकते हैं। उधर अपनी कंप्लेंट्स को ट्रैक भी कर सकते हैं और उनको ऑनलाइन ही स्टेटस मिलेगा कि उनकी कंप्लेंट किस लेवल पे रिजॉल्व हुई है। ये सेबी में इन्वेस्ट करने के डूज एंड डोंट्स हैं। आप लोग हमेशा रजिस्टर्ड मेंबर्स के थ्रू ही ट्रेड करें और हमेशा रिस्क डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट पढ़ के ट्रेड करें। आपका केवाईसी अकाउंट होना चाहिए और अपना यूनिक क्लाइंट कोड हमेशा हैंडी रखें। ब्रोकर से हमेशा अपना कॉन्ट्रैक्ट नोट ले और अपने कॉन्ट्रैक्ट की जेन्युइननेस को भी ट्रैक करें। कोई भी र्यूमर या फिर टिप्स जो मिलती है इन्वेस्ट करने के लिए, उसकी उनकी बातों में ना आए और हमेशा रूल्स एंड रेगुलेशंस रीड करें जो स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे होता है। कोई भी डुप्लीकेट कॉन्ट्रैक्ट्स नोट एक्सेप्ट ना करें। अगर आप बहुत ज़्यादा बड़ी पोजीशन ले रहे हैं तो अगर आप बहुत ज़्यादा बड़ी पोजीशन ले रहे हैं मार्केट में तो हमेशा एक रिटर्न डॉक्यूमेंट में उसको अपने ब्रोकर से लें। अपने फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट का हमेशा रिकॉर्ड रखें। अपना पासवर्ड और यूज़र आईडी किसी से शेयर ना करें। अपने ब्रोकर से पीरियोडिकल स्टेटमेंट लें। अपना मार्क टू मार्जिन और मार्क टू मार्केट एंड मार्जिन रिक्वायरमेंट्स पूरी करें।
जो जितनी भी फीस एक ब्रोकर आपसे चार्ज कर रहा है उसकी डिटेल्स हमेशा अपने ब्रोकर से लें। अपनी पेमेंट और डिलीवरी ऑब्लिगेशंस फुलफिल करें, उसमें डिले ना करें और किसी भी ब्रोकर के साथ कोई भी अग्रीमेंट में एंटर ना करें। इन द एंड मैं बस ये कहना चाहूंगी कि हमेशा एक कॉशियस इन्वेस्टर की तरह एक्ट करें। इन्वेस्ट करने से पहले स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट से सारी इंफॉर्मेशन रीड करें, कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशंस को अच्छे से रीड करें, जो भी रिस्क मार्केट में इन्वॉल्व हैं उसके बारे में अवेयर रहें और फिर एक इन्फॉर्म डिसीजन लीजिए। थैंक यू। थैंक यू। मैं अभी पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट करूंगी, किसी को कोई भी क्वेरी है तो वो हमारे चैट बॉक्स में डालें। मैम, हमारे पास एक क्वेश्चन आया है, डब्बा ट्रेडिंग का मतलब पूछा है शकुंतला जी ने। हेलो। हेलो, एम आई ऑडिबल? या यूर ऑडिबल मैम। मैंने बोला चैट बॉक्स में वी हैव अ क्वेश्चन, डब्बा ट्रेडिंग का मतलब पूछा है। डब्बा ट्रेडिंग होता है जहाँ पे कोई भी ब्रोकर अपने सिस्टम्स लगा के बैठ जाता है लेकिन उसके सिस्टम्स कभी भी स्टॉक एक्सचेंज के साथ कनेक्टेड नहीं होते। तो आपको तो उसमें जब भी आप ट्रेड करेंगे तो आपके जो जितने भी बिड्स हैं वो स्टॉक एक्सचेंज तक नहीं पहुंचेंगे और वहां पे आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। आपको किसी ने पूछा है मार्जिन लिस्ट कहाँ पे मिल सकती है फॉर ईच एंड एवरी कमोडिटी। तो मार्जिन्स जो होते हैं वो स्टॉक एक्सचेंज के कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशंस में मेंशन होते हैं। आप सेबी की वेबसाइट पे जाके उनके सर्कुलर्स भी रीड कर सकते हैं कि कौन कौन से मार्जिन्स लगते हैं, जैसे इनिशियल मार्जिन, एक्सट्रीम लॉस मार्जिन, एडिशनल मार्जिन। और एक्सचेंज की वेबसाइट पे भी ये सारी इंफॉर्मेशन उनके सर्कुलर्स में आपको मिल जाएगी और कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशंस में भी मिल जाएंगी। मैं ऐड कर चाहूंगी, एक्सचेंज के वेबसाइट पे एक डेली मार्जिन फाइल एवरीडे अपडेट होता है कमोडिटीज के लिए, सारे एक्सचेंजेस के वेबसाइट्स पे। किसी के कोई और क्वेश्चंस है? मैं पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट करूंगी, अगर किसी और की कोई भी क्वेश्चंस है तो प्लीज चैट बॉक्स में डाल दे। अगर क्वेश्चंस नहीं है तो फिर मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहूंगी। आप सबने हमारे इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोग्राम में ज्वाइन किया है, और आगे भी हमारे रेगुलरली जो सेशंस होते हैं आप उनमें कनेक्ट कर सकते हैं। हमारे जो भी प्रोग्राम्स हैं उनकी आइटनरी हमारे सारे सोशल मीडिया वेबसाइट्स पे भी अपलोड किया जाता है। और आस्क आप हमारे askers@ncdx.com की मेल आईडी पे भी आपके क्वेश्चंस भेज सकते हैं। मैं दिव्या मैम का भी थैंक यू बोलना चाहूँगी, उन्होंने ज्वाइन किया आज के सेशन में और हम सबको कमोडिटी मार्केट्स के बारे में इंट्रोडक्टरी एक अवेयरनेस दिया है। थैंक यू मैम, एंड थैंक यू टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स फॉर joining us. थैंक यू सो मच। Yeah, thank you.